तेरी कवनो कवनो गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तेरे गुणा बहुते मैं एक ना जानिया। मैं मूर्ख किछ दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा। डुबदा पत्थर लीजै, कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोई। कहो नानक सुन रे मना, हर भावै सो होए। कहो नानक सुन रे मना, हर भावै सो होए। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच सुभाईमान गुरु प्यारी साध संगत जियो। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज जी तिन्हां दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित रखे हुए इन्हां गुरमत समागमां विच आप जी लगातार 11 फरवरी तो अज तक हाज़री भरते आ रहे हो। सतगुरु जी की गोद विच बैठ के आप जी ने वख-वख बुलारियां कोलों पहले 3 दिन बाणी इतिहास दीयां विचारां बड़े प्यार नाल सरवण कीतियां ने। अज चौथा दिन है, गुरु की गोद विच बैठ के आपां गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज तिन्हां दी रसना तो उचारण की हुई बाणी की रल मिल के विचार सांझी करन दा यतन करना है। नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज तिन्हां दी रसना तो उचारण किया होया पावन सलोक जिसका आपां हुणे पाठ सरवण कीता है। जतन बड़े कीते ने सुख वास्ते, दुख लई एक भी जतन नहीं किया, पर दुखों तो फिर भी खैड़ा नहीं छुटता। ये पावन सलोक गिनती मुताबक जड़ी सलोक वारां ते वधीक बाणी है, नौवें पातशाह के सलोक भी उस बाणी के सिरलेख हेठ ने।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤੰਗੀ ਪਹਿਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ ਤੋਂ। 1426 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 1428 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੀਟਰ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਨੇ, ਕੂਲਰਾਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨ ਅਪਸੈਟ ਕਿਉਂ, ਮਨ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖੀ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਵੀ ਪਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂਤਰਾਂ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਵਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਏਡੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਆ, ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਖਿੱਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ
आम बंदे की गल नूं तरजीह, जे आम सधारण तो सधारण बंदा भी, सधारण छड्डो घर च पुत्त धी अपना, जे वो भी असीं निक्की निक्की गल नूं ध्यान नाल ना सुनीए तो कई बार बच्चे खिज जाते भी मैं तुहाडे नाल गल कर रहा। तो इत्थे ते पातशाह की बाणी जदों पढ़ी जा रही है, अमोलक बचन ने, सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे। ये तो गुरु के बचन ने, गुरु की सिक्ख्या है, गुरु के अमोलक ख्याल ने, विचार ने, जिहड़े साडे मन की खुराक है। ते दुनिया अंदर मन बारे जिड्डी वड्डी विचार गुरु ग्रंथ साहिब च है, इस मुकाबले का ज्ञान दुनिया ते होर किते नहीं मिलता। ये सच है। जिहड़ी मन ते तुसीं कोई शब्द शुरू करो, मन तो शुरू हुंदा है, मन ते समाप्त हुंदा है। इसे करके तो साडे बाबे नूं भाई गुरदास ने आख्या सी, जाहर पीर जगत गुर बाबा। ये दुनिया के किसी रहबर नूं ये मान हासिल नहीं होया कि वह जगत का बाबा अखवा सके। क्यों? एक सवाल है, क्यों भी गुरु नानक साहब ने ही बाबा जगत का क्यों आख्या? क्योंकि गुरु नानक साहब ने मनुखी मन की गल की, तो मन दुनिया के हर बंदे कोल है, मन तो ही तो मनुख बने। वो भावें मनुख काला है, भावें गोरा है, भावें जैनी है, भावें बोधी है, भावें पारसी है, भावें जितों का मर्जी है, बस वही भाषा समझा दो, उन्हें कहना बाबा मेरा भी लगता है, इकल्ला तुहाडा नहीं है। पर असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं ना आप समझे ना दूजिआं नूं समझा पाए हैं। असीं ते दूजे बन्ने तुर पे। असीं ते इहो जिहा दीवा बालना सी, इहने हनेरा दूर करना सी। दीवा बले अंधेरा जाए, दीवा बलदा हनेरा दूर हुंदा है ना। जे दीवा बलन तो बाद भी हनेरा दूर ना होवे, फिर लोग सवाल पुछदे भी दीवे च कोई नुक्स है, हनेरा क्यों नहीं दूर हो रहा? दीवा बड़ा है, अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा ने मेरी मत के पापां नूं खत्म करना सी, माड़ी सोच नूं इदां खाना सी जिवें रोशनी हनेरे नूं खा जाती है। हुण इत्थे इन्नियां लाइटां जगदियां, हनेरा कित्थे है? इत्थे ही है। जदों लाइटां बंद करांगे एकदम हनेरा हो जाना है। वो कित्थों होना है? खिड़कियां राही नहीं होना, हनेरा इत्थे ही है। बस रोशनी सामने हनेरे की पेश कोई नहीं जा रही। दुनिया तो पखंड मुकदा नहीं, पखंड इदां ही रहना है। पर जिन्हां घरां च गुरु नानक साहिब के ज्ञान का सूर चढ़ गया, उन्हां ते इस पखंड का असर कोई नहीं होना। बस गल ही नहीं की है, पखंड रहना है। दुनिया ते पखंड, पखंडी समाज तो पहला भी सी, हुण भी अगे भी रहणगे। बस फर्क इन्ना भी जिस घर ज्ञान का सूर चढ़ गया, उहदे ते पखंडियां का कोई असर नहीं, उत्ते कोई पखंड का असर नहीं। तो आओ बड़े प्यार नाल आपां सतगुर दे इन्हां मूलक बचनां नूं समझण दा यतन करना है। तो सारी संगत बड़े प्यार नाल हाजरी लवाओ जी। सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है। वाह वाह। दूसर नाहे न कोई, दूसर नाहे न कोई, कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना, ते सिमरत गत होए, ते सिमरत गत होए, जतन बहुत सुख के किए, जतन बहुत सुख के किए, जतन बहुत सुख के किए, जतन बहुत सुख के किए,
दुख को कियो न कोय, दुख को कियो न कोय। वाह वाह। कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना। हर पावै सो होए, हर पावै सो होए। वाह वाह। हर पावै सो होए, हर पावै सो होए। जतन बहुत सुख के किए, जतन बहुत सुख के किए। दुख को कियो न कोय, दुख को कियो न कोय। कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना। हर पावै सो होए, हर पावै सो होए। धन गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज इस पावन श्लोक विच कितना प्यारा उपदेश दे रहे हैं। जतन बहुत, माड़े मोटे नहीं, थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा। जतन बहुत सुख के किए। हर एक मनुख अपनी जिंदगी च जेड़े भी काम की शुरुआत करता है, उन्होंने पुछो तू कादे लिए करदा है, तो उसका एको जवाब है, मैं जिहड़ा काम शुरू किया, मान लो किसान खेती करता है, उन्होंने पुछो तू कादे लिए खेती करदा है, वो कहता इसलिए खेती करदा, 4 मन दाने होणगे, वेच के आवांगा, पैसे कमावांगा, घर बनावांगा, बच्चे पढ़ावांगा, पुत्र धी दा आनंद कारज करांगा, ਜਿਹੜੇ पैसे होणगे, घर च कोई बीमार होएगा, पैसे की लोड़ पैंदी है, मैं अपने जीवन च सुखी रह के जीवन जीना चाहना, 4 पैसे मेरे पल्ले होण। जिवें गुरु रामदास महाराज का वाक है, करसानी करसान करे, लोचे जियो लाए, हल जोते उद्यम करे, मेरा पुत धी खाए। वो हल जोंदा है कादे लई, सवेरे उठ के सारे लोग सुते ने। ये तो काश किते गूढ़ी नींद सुतियां सरकारां नूं समझ लग जाए भी किसानी किता मुढ़ है। कपड़ा माड़ा मोटे ना सर जाएगा, पर खुराक तो बिना तो सरना ही नहीं। किसान तो किसी देश का भी होवे, घर विच कोई भी वस्तु है किसान की पैदा की साडे घर आउंदी है। दुध गट गट करके बंदा गिलास पी जाता, पर उस एक गिलास दुध पैदा कर लग्या मेहनत कितनी करनी पैंदी है। किदां पट्ठे बीजने हैं, किदां सर्दी च पट्ठे वढ़ के लैके आने हैं, किन्ना 4 मझां लई तूड़ी इकट्ठी करनी है। बारिश हो रही है, दफ्तर वाला बंदा, ऑफिस जाने वाला बंदा घर चों तैयार होके गड्डी च बह के सीधा जाके अपने ऑफिस उतरेगा। इनू तां घरों जाना पैना है, रेड़े ते हथ ठरू ठरू करते हैं। सर्दी च भी पट्ठे वढ़ के लैके आने पैने ने। घर पति बीमार होया, भरा बीमार होया तो भैन ने हैल्प करानी है। ये तो जे सरकारां नूं इहदी समझ लग जाए भी ये किसानी किता, एवें थोड़ा भाई गुरदास ने एक लफ्ज वरतिया सी कि घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। विसाखी साल च एक बार आउंदी है, पर हर चेहरे ते रौनक लैके आउंदी है। क्यों? क्योंकि विसाखी नाल बड़ा कुछ जुड़े है।
कणक पकदी है, किसान के चेहरे ते खुशी आउंदी है, कणक लहरा मार रही है, हुण मैं 4 मन दाने वेचांगा, एरकी मैं 2 कमरे पाने ने। अच्छा कली किसान नूं खुशी है? नहीं, जिहड़ा मजदूर है, जिन्हें मेहनत करनी है। आम दिनां तुसीं वेखिया होएगा जिहड़े मिस्त्री के मगर भी इट्टां फड़ाउण जांदे हो भी कहंदे भाई 4 मन दाने इकट्ठे कर लैण दिओ सानूं, हुण पता है मेरी वैल्यू है, हुण वो किसी नाल काम करता है, मेहनत है। ये किसानी किता कल्ले किसान के चेहरे ते रौनक नहीं आनी, मजदूर के चेहरे ते भी रौनक आउंदी। एवें थोड़ा क्या किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भी एक कली जंग एक दी नहीं, जंग सांझी है। तो एक नाल किसान के चेहरे ते रौनक आई, मजदूर के चेहरे ते भी रौनक आई। अच्छा कल्ले मजदूर के चेहरे ते रौनक आई नहीं, आड़ती के चेहरे ते भी रौनक आई। आड़ती नूं पता भी इन्हें मेरे को लगातार 6 महीने पैसे लाए ने, कभी पुत्र का विआह, कभी कोई बीमार हो गया, हुण पैसे मेरे मुड़ने ने। जे जिणस ही नहीं होएगी तो आड़ती दे पैसे किदां मुड़नगे? उन्होंने भी खुशी है। अच्छा उन्होंने खुशी है नहीं, उहदे नाल होर भी खुशी है कि इहनूं ट्रांसपोर्टर नूं मंडियां च कणक आऊगी तो लदनी कहते ट्रकों ते रेलों ते। अच्छा वो ट्रक चलने काहदे ने? तेल नाल, पेट्रोल पंप वाले का तेल विकेगा, किन्ना कुछ संगली बनी है जिवें संगल नहीं हुंदा। अच्छा फिर जो उन्हें 4 पैसे आ गए, फिर उन्हें घर पाउणा है तो पट्ठे वाले दी इट्टां विकणियां ने। हार्डवेयर जिहड़ा सरिया सीमेंट की दुकान पा के बैठा, वह सरिया सीमेंट बोलो साध संगत जी विकना है। अच्छा जे उन्हें अपने पुत्र धी दा विआह करना है, शहर जाऊगा कपड़े वाले का कपड़ा विकना है। जे उन्हें पुत्र दा विआह करना है, राशन लैन जाएगा, तो जिन्हें स्टोर पाया कोई राशन वाला, कोई दुकान पाई, उतों समान विकना है। हुण तुसीं वेखो ये तुरिया कित्थों सी? किसानी तो, उतों तुरिया ना काम। फिर शहर जाऊगा बंदा, जे 4 पैसे होणगे बंदा शहर जाऊगा, रिक्शे ते बैठेगा। जे 4 पैसे कोल आ गए, कहेगा कि कोई मोटरसाइकिल लै ला, कोई 4 पैसे है भाई कोई गड्डी किस्तां ते लै ला। हुण जिहड़े साडे भैन भरा ने जिन्हां ने एजेंसियां खोलियां ने गड्डियां दियां, कोई मोटरसाइकिल दी खोल के बैठा है, कोई स्पेयर पार्ट की दुकान खोल के बैठा है, बहुत कुछ जुड़िया है। हुण मुढ़ सी, हुण उत्थे शब्द वरतिया जिवें विसाखी साल च एक बार आउंदी है ते चेहरे ते रौनक लैके आउंदी है। पर भाई गुरदास जी कहंदे बंदिया जे तू विसाखी वर्गी रौनक अपने चेहरे ते हर वक्त लियाउणा चाहुंदा ना, पता की कर, घर घर अंदर धर्मशाल, अपने घर नूं धर्मशाल बना ला, तेरा घर गुरुद्वारा बन जाए, जानी कि तेरे घर का माहौल वधिया बन जाए। जिवें भाई तारू सिंह का घर सी ना, रहीम जदों वो मासी की लड़की नूं सूबेदार पट्टी दा लै गया, तब उही मासी जिहड़ा सी भाई तारू सिंह दे घर जांदा है ते उहनूं प्रशादा छकाया जांदा है। बड़ी आस ला के आउंदा, जिवें निशान साहब वाल वेख के लोग आस ला के आउंदे आ, इत्थे मैनूं दवाई मिलेगी, इत्थे मैनूं रात रहण लई कमरा मिलेगा। आपां शहरां जाने ही आ, जदों किते आपां नूं कोई ठहर ना मिले, बंदा कहदा चलो होर कुछ नहीं तो गुरुद्वारा तो हैगा ही है ना। तो एक आस है, वो निशान साहब दा फरा है, वो दसदा है कि तेरा ये शहर च कोई ताया चाचा भूआ फुफड़ मासड़ नहीं हैगा, पर इत्थे गुरु तो तेरा हैगा है ना। आजा भाई तेनू रात रहने लई कमरा मिलेगा, दवाई मिलेगी, तेनू इत्थे नित रसोई तेरी है, क्यों मैदा खान, इत्थे सब कुछ मिलेगा तेनू। तो खैर जिहड़ी बेनती की जा रही है, तो हुण बंदा किसान तो लैके बिजनेसमैन हर बंदा कोई भी काम करदा काहदे लई, मैनूं इह च सुख मिले। कोई भी बंदा पुत्र दा जन्म, माड़ियां धीआं नहीं, धीआं बहुत प्यारियां ने, पर पुत्त क्यों चाहिए? सवाल यह सानूं पोती क्यों चाहिए? सिर्फ पुत्र की प्राप्ति क्यों? क्योंकि ये पिछे भी एक लालसा गुरु रामदास जी ने बाणी च लिखे, जो जननी गर्भ पालती, जो माता गर्भ पालती है ना, तो उसके दिमाग च की है, सुत की कर आसा। तुसीं नोट किया होगा जो घर साडे कोई बाल होने वाला होवे ते उस रूम दे विच उस घर च किहड़ियां फोटोआं लईआं जांदियां भला, लड़की दी कि लड़के दी जी? क्यों भैणों बोल के दस्सिओ, इहदा मतलब दिमाग च की है? अजे बालक ने साडे घर 2-3 महीनों आना है, 4 आना है,
पर दिमाग च किहदा जन्म है? बोलो जी, लड़के दा। अच्छा जे जो दिमाग च है, जो इत्थे ब्रेन च पिक्चर बनी है, जे सारियां दी वो गल सही हो जाए, समाज चल पाएगा? बोल के दस्यो मेरी भैनों, बोलो जी। मान लो भी जिन्हों के दिमाग च है भी हर एक चाहता, अज तक किसी ने लड़की की तस्वीर लाई या मन च इदा आया हो कि मैं चाहना हुण एक पुत है दूजी धी आवे, दूजी बार भी पता की सोचते कि तो रब जोड़ी बना देना? बोलो जी, वो बोलो भाई हुण तो दो तो गल आ गई, पहला 3-3 4-4 पुत्र होंदे सी भी किते जोड़ी बना दे। अच्छा जोड़ी काहदे लई? ते सलामा पता कर दे, एक ना रोटी देऊ। बोलो। अच्छा मैं यदि दूजी उदाहरण देना भी हो सकता एक कुछ ना कवे, जे दोवें रल के तो वेलना वेख्या, वेलना वेलने में गन्ना देइए ना रहो कढ़ देंदे वेलना, हो सकता दोवें रल के मोहरा फेर देना। माफ करना सच्चाई है। जे सुख वेखो हुण साडे दिमाग च की है, सुख बुढ़ेपा सौखा लंघ जू, तो गुस्सा ना मनाओ बुजुर्गो, मेरे भैनों भरावो, समाज विच बहुते बंदे अपने पुत्रां दे हत्थों पीड़ित ने। एक कड़वा सच है, हजम करना औखा है। अच्छा पुत्र दे हत्थों पहला दुखी है, फिर मंगी जाएंगे रब्बा पोतरा दे दे, पहला हथ नहीं लगे, सूई दे नक्के विचों दी कढ़े अजे भी रब्बा किते पोतरा दे दे ना मैनू। पहले ने कोई ठाणा नहीं छड्डिया जिथों जमानत करा के ना लिआंदे होवे, फिर भी पुत्र मिछड़े मेवे रब सब नूं देवे। हुण गुरु रामदास महाराज नूं पुछिए, महाराज ये पुत्र चाहिदा कादे लई भला? ते गुरु रामदास जी कहंदे ने ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा। हुण इहदा अर्थ ये नहीं भी गुरु रामदास जी मोहर ला रहे हैं, वो कहंदे दुनिया की तस्वीर है, वड्डा होए, एग्जाम्पल है, ये गुरमत नहीं है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है सिर्फ भी वो दिमाग सोचते भी वड्डा होए इन्हें वड्डे होना, धन खाट दे इन्हें धन कमा के लिया, तो कमा के लिया के तुम सुखी होवांगे। क्यों जी? अच्छा कमा के लियाऊगा, जरूरी है भी वो तुहानू फड़ाऊ आन के? बोलो जी, बोलो भैनों। अच्छा जे तो धी विआही है फिर तो इदा सोचते हैं जवाई भैने बहुत ही चंगा मिलिया, जिदन की लड़की विआही गई उदन का ही परस ओनू फड़ाउंदा, तो जे इदा की नूंह आ जाए भला बोल के दस्यो हाँ, फिर कहते आउंदे पिछे ला लिया। बोलो क्यों मेरी भैनों? पता नहीं की करा के लैके आई आ, उन्होंने तो पता नहीं धूड़े आई आ, उन्होंने रात तो दसदे नहीं सवेरे ही आंदे आ बस चले आ। अच्छा जदों धी की गल आउंदी आ उदों की आंदे आ भैने जवाई आहा हा हा मोती पुन कीते असीं, वो तो आन के सारा परस जो कापियां जो बैंक बैलेंस जो रजिस्टरियां सब लड़की साड़ी दे हवाले करतियां। अच्छा जे नौं दे हवाले करे पुत फे ये पुठियां पैरां वाली आ गई। ओ बोलो भाई इदा हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो मेरी भैनों, हो रहा ना? अच्छा जो सोच अपनी धी प्रति आ नौं प्रति भी लियाओ फिर हो, तो जां जिहड़ी सोच तुहाडी अपनी नौं प्रति आ धी नूं कह के विखाओ कि धीए तू भी पुठियां पैरां वाली जांदियां, उन्हें भी मां ने बड़ियां रीझां नाल पुत पालिया सी, वो भी चाहती सी मेरा बुढ़ेपा सौखा लंघे, तू जांदियां अपने पिछे ला लिया उन्होंने। एक मेरी भैनों ध्यान ना सुनियो, जदों धी सहुरे घर मान लो को उच्चा नीवा बोले, जे पिछों मां जाके बाप इना कह दे ना धीए सुन ला जे तू गलत होई उत्थे कह के आवांगे, असीं तेरी गलत की सपोर्ट नहीं करनी। तो 100 वारी धियां बोलन लगियां सोचणगियां कि मेरा माँ बाप सही गल करेगा। मैं कहना अदालतां तक साडे केस जाने नहीं, असीं अपने घरां दीयां लड़ाइयां घरे च ही निबेड़ लैणीआं। जदों असीं इस बन्ने ध्यान दिता ही नहीं, थोड़ी जी कागरता। गुरु साहब जी कहते हैं ज्यों जननी गर्भ पालती कादे लई सुत की कर। हुण शब्द सुत वरत्या धी नहीं वरत्या इत्थे महाराज ने। हुण महाराज ने ये दुनियावी पिक्चर खिंची है ना भी दुनिया की हालत यह है, दुनिया चाहती है। मैं कई ऐसिया मावां वेखियां उन्होंने घर 2 पुत्र वा ते अगे दोवां पुत्रां दे फिर अगे एक एक पुत्र वा, वो चाहते नहीं धी साडे घर च होवे। वो हद हो गई, तुहानूं धी परवाह नहीं।
साडा समाज किदां चलेगा, दुनिया किदां अगे, दुनिया किदां अगे वधेगी। फिर पंजाब च कोई बाबा विखा दिओ मैनूं जिहदा पुत्त दी अरदास, धी दी अरदास करदा होवे, लोग भज्जे जांदे लैणा लग लग के, फलाने थां तो पुत्त दी अरदास मिलदी, फलाने थां ते पाथियां चढ़ा दो पुत्त मिलदा है, फलाना बाबा सेब दे के पुत्त दिंदा है। क्या तमाशा है बई? कोई मैनूं डेरा विखा दो जिथे धीआं दी अरदासां हुंदियां होण। वो बोलो साध संगत जी, कि हालात नहीं साडा समाज ने। हुण गुरु नौवें पातशाह कहंदे ने जतन बहुत सुख के किए। जतन तो किया सी पुत्त प्राप्त होवे, ते पुत्र वड्डा होएगा, की करेगा? ये तो इन्हें कमाई करनी है, तो सुख देना है। तो कई अपनी औलाद उत्थों दुखी मुड़ के पता कहंदे आ, इहदे नालों ते औलाद अगे तुसीं बोलो हुण ना ही रब दिंदा। जिन्ना मावां दे मौर पोले कीते ने पुत्रां ने मार मार के, उन्हां मावां नूं पुछ के वेखो जेड़े नशे करदे आ, मारदे आ, जेड़े गलत संगत विच पै जांदे आ, ये कल्ले एक समाज दी नहीं, ओवरऑल हर समाज दी गल वेखो तुसीं। हुण गुरु साहब जी कहंदे ने जतन बहुत, थोड़े नहीं। पुत्र प्राप्ति होई, जतन किया, पुत्र होया, वड्डा किया, विआहया, सुख मिलेगा, पुत कमा के लियाएगा, नूंह साडी सेवा करेगी। पर ये तो प्यारे खूह च जिहो जी आवाज़ मारोगी उदां दी आउणी है। की घर च उस माँ ने अपनी माँ की कीती? सस नूं पुछया? कईयां दे सामने सस तड़फ तड़फ के मारदी आ, ते नूंह तो पता की आस लाउंदी है, किते रब चंगी नूंह दे देना, चिट्टी चादर विछा के मैनूं बिठावे। ये किदां होएगा वे? ये तो बस विच भी लिखिया हुंदा, जी कहो जी कहाओ। ये तो जी कहोगे तो जी, ये तो खेत शरीर जो बीजी है अंत खलो आए। ये तो शरीर एक पैली है, ये तो जो बीजिया जाना वड्ढना पैना है। तो पातशाह कहते जतन बहुत सुख के किए। हुण गड्डी काहदे लई सी भला? सुख लई भी बसां जाईदा है, गड्डी सवेरे 4 जी बहिने आ, घूम के आ जाने आ। ध्यान नाल सुणिओ, हुण बरात गई एक पैलस विच, रिश्तेदार आए। अजकल तो पैलसां जी सारे जाते हैं, उत्थे शराब वरत रही है, सारे पी रहे ने, कुछ बंदियां नूं छड्ड के। वो भी पी रहा जिहड़ा अपने बच्चियां नाल आया है। गड्डी चला के किहने खड़नी है जी? बोल के दस्सिओ। बोलो साध संगत जी, गड्डी उन्हें चला खड़नी है ना। हुण गड्डी काहदे लई सी? सुख लई। जे जांदियां घटना वापर गई, उहदी गलती नाल परिवार, बच्चे, कोई जी चला गया, तो जतन तो सुख लई कीता, गड्डी काहदे लई? सुख लई। पर साडी गलती नाल ओह चों की मिलिया? हुण बोल के दस्सिओ। बोलो जी। फिर गड्डी वाल वेख वेख के की कहंदे ने, कलैणी आई गड्डी। गड्डी कलैणी नहीं सी, साडियां हरकतां माड़ियां सी। दद्दे दोष न देऊं किसै, दोष करम अपनिया। अगे बोलो, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। हुण इत्थे तुसीं सरेआम वेख लो, साडे समाज सब तो वड्डे गुनाहगार वो लोग जिहड़े पैलसां शराब पिआउंदे आ। उन्हें एक बार वेखिया भी साडियां 2 धीआं जवाइयां भी इसे विआह च आउणा, गड्डी उन्हें चला के जानी है, रिश्तेदार तो साडे ही आउणे आ। कोई प्रबंध किया भी उन्होंने गड्डी चला के कौन खड़ू? एक बार सोचा, कभी मीटिंग की इदा विआह तो पहला भी वेखो भाई आपां विआह ते प्या तो देनी है। अच्छा, बेड़े बराती नाल ड्राइवर गए होंदे आ, ईमानदारी नाल दस्सिओ उन्हां विचों किन्ने परसेंट जिहड़े नहीं पींदे होणगे? उन्हां भी पीनी है। जिहड़ियां गड्डियां नाल जाणियां, राह च घटना वापर गई, फिर असीं उलामा कर देना, हाय रब्बा तेरे कोलों साडियां खुशियां। ओ बोलो भाई की कहंदे भला? अच्छा, रब कोलों नहीं जरियां गईयां कि सानू विआह करना नहीं आया। अच्छा, एक घटना तो बाद असीं फिर सीखण की कोशिश की। हुण असीं पुत्र धी वड्डा कीता सुख लैण लई, गड्डी लई सुख लैण लई, पुत्र विदेश भेजिया सुख लई। हुण जतन तो सारे सुख लई कर रहे हैं, पर सुख कित्थे? फिर भी डिप्रैशन, हाय मैं मर चलिया, हाय मैं इदां हो चलिया, हाय मैं फा लैण लगा, हाय मैं इदां कर लगा। उहदे पिछे कोई वजह है। शरीर की खुराक बहुत है। जिन्ना भी धन दौलत दिस रहा ना, ये शरीर के काम आने वाला है। मन चों
मन के काम आने वाली इन्हां चों चीज़ किहड़ी दसो। दो किस्म का धन है साध संगत जी, एक तन का एक मन का। जिहड़ा तन वाला धन है ना वो साढ़े सारिਆਂ को हैगा, किसी को 2 छिल्लड़ वाधा तो किसी को 2 छिल्लड़ घट वा। किसी की बैंक 4 लाख पिया तो कोई कहता भाई आई चलाई हैगी है, भड़ोली झाटा हैगा, कपड़े हैगे, तन कज्जिया मेरा। तन का धन जिहड़ा बैंक 4 पैसे पे तन के काम आने हैं, जिहड़ा कपड़ा वो तन के काम आना, जिहड़ी गड्डी ये तन नूं सुख देने वाली है। जे ठंड लगी हीटर तन नूं, जे गर्मी लगी एयर कंडीशन वो भी तन दे। मन नूं ठंडक देने वाली चीज़ कित्थे है? हुण अत दी बाहर ठंड हुंदी है, मन ठंडा हुंदा है? बोलो साध संगत जी। हुण जिहड़ा चंदन है, चंदन लोकी मत्थे तुसीं वेखिओ कदी चंदन मत्थे ते क्यों लाउंदे भला? जिहड़ा बिपर है वो मत्थे ते तुसीं कदी मंदिर जाओ उत्थे चंदन दा टिक्का लाउंदे आ। अपने भी विआहां शादियां जदों पुत्तर धी दा आनंद कारज आपां करदे आ, सगन लाउण नहीं आउंदे लड़की वाले, वो केसर नाल चंदन वो समगरी जी लैके ओहदी टिक्का नहीं देखिया अजकल पग ते लाउंदे। हुण तां हौली हौली ये चीज़ां निकलदियां जांदियां। हुण है कर्म कांड है तो मत्थे ते टिक्का क्यों लाउंदे आ? क्योंकि खुशी ते गमी ये साडे मत्थे ने दसनी है। बंदा खुश होऊगा तां भी मत्था दसदा, बंदा सड़िया होऊगा तां भी मत्था दसदा। बंदे के चेहरे तो पता लगता ना अज खुश बड़ा है, अज उदास बड़ा है। तो बंदे ने उसका प्रबंध की किया? चलो चंदन मार लो क्योंकि चंदन ठंडा होंदा है। बापू ने डंके की चोड़ ते इस गल ते मोहर लाई, कहते चंदन चंद ना सर्द रुत मूल न मिटे ही काम। मूल मुढ़ तो ही मूलों ही घाम कहते गर्मी नूं। हुण कल्पिया ते तेरा मन है, सप ते वड़िया खुड च ते तू तो रुड कुट्टी जाना, खुड कट्टी जाना। वर्मी मारी साप न मरई, नाम न सुनई डोरा। वर्मी मारी साप न मरी, वर्मी खुड। हुण हुण जिहड़ा सप है वह खुड विच है, रुड विच है, ते बंदा उत्तों धरती कुट्टी जावे सप मर जू। बोल के दस्यो जी, तो सप किदां मारना? उत्तों धरती पोली करनी पैनी, उन्होंने कढ़ना पैना बाहर, उसकी सिरी ते डांग वजू, फिर मरना जाके उन्हें। सप कौन है? ये मन जहर ना भरिया पिया। तो कष्ट किहनूं दे रहे हैं? शरीर नूं। शरीर नूं कष्ट दिते आ, मन की जहर किदां मर जू? वो तो इस मन नूं, इस मन की विष जहर बाहर कढ़नी पैनी है। मन के ख्यालात बदलने पैने ने, वो भरे पे ने। इस नूं आख्या सी कच्चों कंचन भयो, शब्द गुरु सरवणे सुने बिखते अमृत होयो। वो अंदर बिख है, जी अंदर जहर है, सप नालों भी कई गुणा वध इस मनुखी मन च जहर है। सप तो उन्होंने डंग मारता जिहड़ा उहदे लागे जांदा, लक ते पैर रखदा। ये तो उन्होंने भी डंग मारी जाता जिन्हें इन्हूं कदी कुछ नहीं किया। हुण जिहड़ी धी ने कुछ नहीं सी किया उन्होंने भी जन्म तो पहला मरवाता। सप नालों घट है? जिहड़ी धी ने ते अजे इहनूं किया ही कुछ नहीं, उन्होंने माता के गर्भ च ही कतल कराता। सप तो फेर कुछ कहता वो लक ते पैर रखोगे, ये तो सप नूं भी मात पा गया। एवें थोड़ा गुरु साहब ने बाणी च कहा सी बिन सिमरन जूना पिया भोग रहे आप, जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। बस फर्क इन्ना का, वो सप खुडा च रहिंदा, ये सप घर च रहिंदे। वो बोलो भाई फर्क इन्ना ही आ। वो सप खुडा च रहिंदे आ, धरती च रहिंदे आ, ये सप धरती के उत्ते महल पा के बैठा हैगा ते भी जहर है। जून ते भी सप दी भोग रहा। इस गुरमंत्र हिणस चो प्राणी त्रिगंत जन्म भ्रिष्ट ने, कूकर है, सूकर है, गर्दब है, कक है, सर्प ने, तुल तुल कहते ने बराबर नूं, खला कहते मूर्ख नूं। ओ मूर्खा इन्हां पंजां दे बराबर है जे गुरु की सिक्ख्या तेरे कोल है नहीं। गुरमंत्र मंत्र मीनिंग किदा सिक्ख्या। जिवें मंत्री हुंदा ना, मंत्री सलाहकार हुंदा राजे दा, राजे ने की करना की नहीं करना वह मंत्री दसदा उहनूं। मूल मंत्र ये की है? साडे मन की सलाह। सानूं असीं अपने गुरु को सलाह लैंदे आ। जो मैं मूल मंत्र पढ़दा, जो मैं गुरु का शब्द पढ़दा, ये मैं सलाह लेना गुरु को। गुरु मैं इदा कर लगा, गुरु कहता सलाह लै चक
कर काम। असी की करते हैं 48 घंटे सलाह लेने, काम पे अपनी मर्जी ना। क्यों जी? 48 घंटे भाई साहब पाठ करते साढ़े घर। मतलब ये इदा हो गया भी जिमें कोई बंदा घंटिया बधी किसी को सलाह लवे तो काम मुड़ के अपनी मर्जी ना करे। हार के बंदा अक के पता कहता जो काम ही तू अपनी मर्जी नाल करना। जिमें बंदा डॉक्टर को जाके सलाह लवे भी मैं की खावां की ना खावां जी मेरी बीमारी कंट्रोल च होवे, तो डॉक्टर कहे लिस्ट बना के लै जा, आ सब्जियां तेरे खाण जोग आ तेरे नहीं खाण जोग, तो फिर चला जाए घर च चीज़ बनी हो तो वेख के जा। कई बार इदा होंदा हुण शूगर वाला जो मरीज बंदा है जिन्होंने मिठा बंद है वो लागे कितने गजरेला बनया हो, पुछ के वेखो जो वो लागे कोई मिठी चीज़ बनी हो पुछ के वेखो, जी तो करता ना वह। हर के दूजे भावें कहिंदे ना खा, कहता कोई नहीं दवाई थोड़ी जी बोलो जी वध खा लूँ। हुण जिहड़ी गल मनदी सी भी सलाह लै ली डॉक्टर को ते खादा, फिर वो जिहड़ा मना कीता सी सलाह लै ली गुरु कोलों, गुरु ने सलाह दी नशा ना पीवी ना पियाई, कोई बेईमानी ना करी, दिता पैरा इस गल ते काम फिर वो किया। तो फिर जो दुख मिलिया तो फिर असी दस्यो बंदा अपनी मर्जी नाल खाना पीना शुरू कर दे तो रोग वध जाण, उस तो बाद डॉक्टर नूं कहण जोगा हैगा जी बोल के दस्यो। डॉक्टर कहता जो तू मेरे मुताबिक दवाई खाधी नहीं, तू मेरे मुताबिक परहेज किया ही नहीं, तो तेरे वधे हुए दुख का मैं जिम्मेवार नहीं हाँ। हुण जदों नशा सानू गुरु ने मना किया, असीं पीने तो पिउने, उत्थे गोली चल गई, डेथ हो गई, की आने रब नूं साडी खुशी पसंद नहीं आई। बापू जी कहते जो तुसीं मेरी सलाह ना काम ही नहीं किया, तुसीं एक काम मेरी सलाह ना करके वेखो, नतीजा वेखो तुहाडे सामने, वेखो किदां उड़दे फिरदे तुसीं, तुहाडे जीवन दियां लोग उदाहरण देणगे। काम तुसीं करना अपनी मर्जी नाल, शब्द तुसीं बाणी नूं समझना नहीं, गुरु साहब कहिंदे कि नहीं उस बन्ने ध्यान देना नहीं। हुण इत्थे महाराज जिहड़ी गल करे कहते चंदन चंद चंद चंद्रमा ना सर्द रुत सर्दी दी रुत, मूल ना मिठे घाम, अंदर दी जिहड़ी तपश है भावें बाहर कोरा पिया होवे, भावें चंद्रमा की ठंडी रात होवे, भावें चंदन होवे, ये तिन्ने चीज़ां रल के भी बंदे दे अंदर दी तपश नूं खत्म नहीं कर सकदियां। जियो तपत है बारो बार, जियो तपदा तो जियो तो इदा भी तपदा। विचोले ने कहा होवे कि आ समान देंगे थोड़ा जा घट आ जे, तो बाकी सारे रिश्तेदार चाह पानी पीन डे, तो जेडे घर के मम्मी डैडी आ उन्होंने जियो किदा हो रहा लाड़ा, वो अंदर कहना मैं नहीं जाना सवेरे वे, उन्होंने तो क्या सी असी गड्डी आ देवांगे, गड्डी होर लै आए। बोलो जी जियो तपदा कि नहीं? हुण ये जिहड़ा जियो तपदा ये किहदे हत्थ है? साडियां अपनियां गलतियां ने। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार। आ सुने हुण आ कारण, जय तन बाणी विसर जाए। तन इत्थे तन का मतलब की है, क्योंकि तन विच ही मन है ना, मन अपने आप तो कुछ भी नहीं है। जो तन ही है नहीं तो मन, तन तन भांडा है, मन पई विच वस्तु है। तन तन दे विच मन है ना, तो तन शब्द तां वरत्या भी तन विच मन आ। जो तन ना रहा तो मन कित्थे रहना? फिर तो खत्म कहानी। जय तन बाणी, तन मीनिंग मन, जय तन इनू इदा अर्थ करने आप, जय तन मीनिंग जिस मन विच, जय तन बाणी विसर जाए। हुण जिस तन चों मालक की बाणी विसर गई, हुण तन चों किदां भुली भला? जो मन चों भुल गई तो हत्थां चों आपे भुल गई, हत्थां ने चोरी करनी है। जो मन चों भुल गई पैरां ने गलत रस्ते तुरना, झूठी गवाही देन जाणगे पैर, भी चक 15,000 गवाही झूठी देनी, तू कहना मैं अखीं वेखिया इनू इदां काम करदे, तू लफ्ज़ बोलना उत्ते आपां फसा देना बंदा, पैरां ने तुर पैना। पर जो मन में सच की विचार होएगी, वो कहेगा भरावा उधार लैके खा लांगा, पर हुण पैर गलत रस्ते नहीं तुरते। हुण कबीर गूंगा हुआ बावरा, हुण तो गूंगा हो गया मैं,
हुण नहीं मूँह बोलदा, किद्दां नहीं बोलदा? भाव हुण इस मूँह नाल झूठियां गवाहियां नहीं हुंदियां, हुण इस मूँह नाल झूठियां गल्लां नहीं हुंदियां, इस मूँह नाल दूजियां दे घर तोड़न वालियां गल्लां ते हुंदियां नहीं ना। हुण तां जे दो भरा लड़दे होण ते उन्हां दे सिर जोड़न दी कोशिश करीदी आ, हुण लड़ाई पाउण वाली गल नहीं हुंदी। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ काना। बहरा हो गया हुण कन माड़ियां गल्लां सुणदे ही नहीं। कई कहणगे फलाणे नूं ना चुगली करन दी बड़ी आदत ही। अच्छा तैनूं किद्दां पता लगा? क्योंकि तूं भी तो कान ला के सुनी है ना। ये जिवें डाटा नहीं हुंदा भी हुंदा एक मोबाइल तो दूजे मोबाइल वाले का भी वो डाटा देई गया, तू कान करके डाउनलोड कराई गया। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਚੁਗਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਕਾਨਾ ਫੂਸੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਛੱਡਣੀ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੁਣ ਲਓ। अफवाह है, अफवाह इदां फैलदियां ने। साडा समाज इत्थे टिकिया होया। हुण लिखिया कबीर गूंगा हुआ बावरा। हुण गूंगा होने का अर्थ कि हुण मूँह तो माड़ा शब्द बोलिया नहीं जा रहा, मैं हुण माड़ियां गल्लां वल्लों गूंगा होया वां, चंगियां गल्लां ते मेरे को जिन्नियां मर्जी करा लो। हुण गूंगा होया एक पक्षों, किहदे पक्षों? कि मैं माड़ी सलाह नहीं किसी नूं देनी, ते कन्नां चों बहरा क्यों होया कि हुण मैं किसी कोलों माड़ी गल सुनदा ही नहीं। जदों मैं माड़ी सुनांगा नहीं, माड़ी बोलांगा कितों? क्योंकि जो कन सुनदे आ मूँह चों ओही गल निकलदी आ। हुण तुसीं ड्रम च पाई कणक है, विचों मक्की निकलूगी? ਉਹ बोलो साध संगत जी, थर्मोस च पाई चाह विचों दुध निकलू? हुण थर्मोस च पाई चाह विचों निकलनी भी चाह है, कन्ना राही जो पाया मूँह ने ਉਹ ਕੱਢਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ जिन्हां घरां च गालां ਕੱਢਦੇ आ ना ਵੱਡੇ, ते ਨਿਆਣੇ सुन के हौली हौली ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਚੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਿਕਲੂ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜੋ ਹੋਇਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੁੱਟੀ ਗਏ, ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖੇ ਆ, ਪਰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੰਦਗੀ ਚੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੋਹਣੇ ਕਮਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁੱਟਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟੀ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਸ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲਾਟ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪਲਾਟ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਅਗਲਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, 2 ਗੱਲਾਂ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਰਕਟ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ ਵੰਜੋ, ਭਾਜੋ, ਹੁਣ ਨਸ ਵੰਜੋ,
किल वेखो करता घर आया। हुण ते करता घर आ गया, हुण निकल जाओ तुसी बस। तुहाडी हुण इत्थे तुहानूं हुण गंदगी पाउण थोड़ा देनी है। तुसी पाई गए 10-15 साल जदों तक घर दा मालक नहीं सी। हुण आ गई आसा की वार, हुण आ गया जपजी साहब इत्थे, हुण आ गए इत्थे नवें पातशाह दे सलोक इत्थे, हुण आ गई इत्थे सूही की वार, हुण आ गई इत्थे बसंत की वार, हुण इत्थे आ गया मालक घर दा। वो कहंदा भजो हुण नस वंजो किल विखो, अगे बोलो करता घर आया। हुण जदों करता घर आ गया आपां सुखी हो जाना। अजे करते नूं घर लियाउण नूं असीं उच्ची बोलो जी तैयार नहीं। हाँ आ गल जवाब दिता भैणा, अजे असीं करते नूं घर लियाउण लई तैयार नहीं हाँ। अच्छा ये हुण एग्जाम्पल इत्थे लाओ, बच्चे माँ बाप कोलों चीज़ां मंगदे आ जी। अपने बच्चे अपने कोलों ही मंगदे, असीं बच्चे असीं अपने मम्मी डैडी को मंगदे, अगे अपने बच्चे अपने को मंगदे आ ना। उन्होंने कई बार ये भी नहीं वेखना भी इहदी जेब च पैसे हैगे आ। क्यों भैणों बच्चे मंगदे, बच्चा कई बार कहता मैनूं कोटी लैके दिओ, मैनूं स्वेटर लैके दिओ, मैनूं कोट लैके दिओ, पर माँ बाप सोचदा इन्ना बजट साडा नहीं हैगा। सोचते आ कई बार सर्दी मुक्कण वाली हुंदी, आपां ये सोचते हैं हुण ठंड लंघ गई आ इदां वेख लैंदे आ अगले साल लैवांगे, पर बच्चा ना ये चीज़ सोचदा। बच्चा कहता नहीं मैनूं लैके दिओ। अच्छा बच्चा माँ बाप कोलों चीज़ां मंगदा है। अच्छा ईमानदारी नाल सोचिओ, जिहड़े बच्चे माँ बाप कोलों चीज़ां मंगदे आ पर जदों कल नूं वड्डे होण माँ बाप नूं घर रखण नूं तैयार ना होना, फिर बच्चे चंगे लगदे आ। फिर वो दित्तियां होईयां चीज़ां वेख के खिज नहीं चढ़दी भी तेरे जन्मदिन ते मैं इन्ना पैसा लाया, तेरे मैं कोई चीज़ तो मना ना कीता, अज तू मैनूं दर दर दा मोहताज कीता। दुखी हुंदा ना मन। हुण ये गल इत्थे ला लो, असीं भी तो अपने गुरु नाल इंज ही करदे आ, मंगी जाने मैनूं आ दे दे मैनूं आ दे। गुरु कहंदा एक काम कर, हाँ तू मैनूं घर लै जा, तू मंगी जो जाना तू मैनूं घर लै जा। साडा क्यों की जवाब है नहीं जी घर खाण जोगा है नहीं। हुण सोचो भला पुत कहे प्यो जोगी घर च जगह है नहीं। हुण समझ मैं जरूर नहीं कहता सरूप रखो, पोथियां रख लो, कोई बाणी दियां पोथियां कोई उड़का रख लो। वो गुरु क्या सिखा जे तेरे घर बाणी दी पोथी कोई नहीं हैगी तो किहदे घर होएगी। जे तेरा ये जवाब है भी नहीं जी असीं ते पोथी रखते नहीं, क्यों क्योंकि भाईया जी पींदे ने, न्याणे फिर घर जूठ मीठ रहिंदी इस करके असीं रखते नहीं। ये तो मतलब असीं गुरु दे मुताबिक तुरन नूं तैयार नहीं, पर गुरुद्वारे जाके जाना मैनूं आ दे दे मैनूं आ दे दे मैनूं आ दे दे। ये सेम इदां ही आ जिवें बच्चे साडे कोलों चीज़ां मंगी जाण पर बच्चे वड्डे हो कहण बापू सब कुछ दे दे पर तेरे जोगी साडे घर च हुण जगह है नहीं। चंगा लगता है बच्चा सानूं नहीं लगता। रखो घर का माहौल वधिया बने। भैणां को बड़ी वड्डी कला है, बच्चे नूं तैयार करदिआं पाठ सिखा सकदी है। आ पुत्त तेरे नाल मैं पाठ करदी हाँ, मेरे गाड़ी गाड़ी मैं एक पौड़ी पढ़दी हाँ, तू मेरे पिछे एक पौड़ी पढ़, फिर मैं 2 पौड़ियां पढ़ूँ। फिर ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੇਖੀਆਂ दूजी तीजी क्लास तक ਜਾਂਦੇ जपजी साहिब ਦਾ पाठ मावां ने बच्चों ਨੂੰ कंठ कराता। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ? जिस माँ कोल सी, ते जिस माँ को नहीं सी उन्हें गाने लाते, उन्हें गाने वाले बने तोड़ता। हुण बच्चा तो पानी वर्गा है। असी एक बार कैंप लाया मोगे लागे एक पिंड, तो कैंप की समाप्ति सी, गल मेरे ख्याल 12-13 साल पुरानी है। कैंप लाया तो जो समाप्ति कर लगे तो असी बच्चों की लिस्ट बनाई साडे वीर ने कि जेड़े बच्चों ने बोलना वो आ बच्चे ने कविता बोलणगे, कोई बाणी की तुक सुनाएगा, कोई श्लोक पढ़ेगा। वो एक बच्चा कैंप च नहीं सी आया, तो वो आण के आंदा जी भी मैनूं भी टाइम दे दो, कोई बच्चा छोटा सी। असीं कहा वैसे तो निजम यह भी जोड़े बच्चों ने कैंप च भाग लिया वो ही बोलणगे, क्योंकि हो सकता वो बच्चे रह जाण, फिर उन्होंने मन च गिला रहेगा। पर चलो जे तुसी बड़े मान ना आए जे तो तुहाडा असीं नाम लिख लैंदे। वो तो चंगी किस्मत कि असीं उस बच्चे नूं साडे वीर ने परां जाके पुछ लिया भी सुनाउणा की तूं, क्योंकि बाकी बच्चों की लिस्ट बनी सी भी इन्हें कविता सुनाउणी है, सिख इतिहास बारे, बाबा बंदा सिंह बहादुर बारे, साहिबजादियां बारे। हुण जिहड़ा बच्चा घरों आया उहदे बारे आपां नूं पता ही नहीं उन्हें की सुनाउणा है। वो तो साडा वीर चंगा सी भी वो बच्चे नूं आंदा पुत्त की सुनाउणा। उन्हें हुण बच्चा छोटा सी हुंदा जी मैं कविता सुनाउणी है। हुण उहनूं पता नहीं सी भी कविता ते गाने 'च फर्क ही है। वो जदों बच्चे नूं
पर जाके गुरुद्वारे बाहर खड़ के सुनिया, वो बच्चा तो 15-20 गाने याद करी फिरे, तो वो गाने जी मैं इतने लैन भी गुरु की हजूरी च नहीं बोल सकता। जदों असी उस बच्चे को नहीं टाइम था, तो वो भैन आती तुम मेरे बच्चे को क्या भैने ये किहने सिखाया, उनके घर च TV लगा होंदा, जो गाना चलता तो सुन लेंदे। हुण तुसीं अंदाजा लाओ ये बच्चे का कसूर है, बोल के दसो भैनों, मां दा। हुण जो वो तो पानी वर्गा सी जिहड़ा रंग पाया उन्हें ग्रहण कर लिया। हुण बच्चे नूं की पता है, बच्चे नूं ते मां ने दसना भी दादी बहुत नेक है, भावें कड़वा सुभाਅ है, पर पोते वो धरती है जिस तेरे बाप ने जन्म लिया तो मैनूं विआह के लैके आया। ये तो मां ने दसना है ना। तो जे उन्हें पहले ही यार भरता, दादी कोल ना जाई, चाची कोल ना जाई, भूआ कोल ना जाई, वो तो टूने कर दिए। ये समझ लो यहर भरता सी अपने। इनू कहते कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार। आकाश चों डिगी हुई बूंद पथरीली धरती ते डिग पवे तो बेकार चली जाती है। लोह तपदी होए उतों बूंद आण के डिगे तो बेकार ही गई, पर जे उपजाऊ धरती ते डिगू वो तो फसल का रूह बन गई ना। बिन संगत माने ही होए गई पाठशार, वो तो स्वाह बन गई। डिगद्या सारे उत्तों डिगी बूंद पत्थर ते डिगद्या सारी तपदी लोह ते डिगी नाल ही खत्म। दूजे बने कहते कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए। क्या एग्जाम्पल दित्तियां मेरे सतगुर दे। डिगी आकाश चो निर्मल बूंद किसान की उपजाऊ धरती च डिग पई, तो किसान ने चुकी मोढे ते कही वाट अपनी कर ली उच्ची, तो निर्मल बूंद नूं क्या अंदर रह, अंदर रवेंगी फसल का रूह बनेगी। तो ये डिगी हुई बूंद ने 4 मन दाने भी लैके आने ने। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए, अणक सियाणे पच गए ना निर्वारी जाए। हुण जिहड़ी आकाश चों डिगी बूंद धरती च मिक्स हो गई, कोई दुनिया का बंदा उन्होंने वखरी कर सकता? वो तो फसल का रूप बन गई है। हुण इत्थे निर्मल बूंद की गल नहीं हो रही, इत्थे गल हो रही है जिहड़ा बच्चा दुनिया ते आउंदा है वो निर्मल बूंद वर्गा है। उन्होंने वाल छाल कुछ नहीं पता। तुसीं कदी नोट करियो, भरा दी भरा नाल नहीं बनती, दराणी दी जठानी नाल नहीं बनती, सस दी नूंह नाल नहीं बनती। मान लो उदाहरण एग्जाम्पल है, कई बार भरा दी भरा नाल नहीं बनती, पर घर सामने आमने सामने होंदे आ। पर जो बच्चा गली च जांदा ना, ताया उन्होंने इदा वेंदा, उन्होंने पता मेरा छोटा भरा मेरे नाल बोलदा नहीं, पर ताया उन्होंने तो पता खून साडा ही है, वो इदा तो बुलाउंदा उन्होंने, तो बच्चा हस पैंदा। हुण बच्चे नूं की पता, वो तो निर्मल बूंद है भी मेरे प्यो नूं तां मेरा प्यो तो इहनूं वेखना पसंद नहीं करता, उन्होंने थोड़ा पता है। पर बच्चों ते वो भी बुला जाते जोड़े पिंड विच साडे नहीं है साडे नाल बोलते, वो भी बच्चे वाल वेख के तो भी किलकारी मार जाते हैं। पर बच्चा तो वो वाल वेख के भी हस पैंदा। हुण बच्चा ताए वाल वेख के भी हस पिया, चाचे वाल वेख के भी हस पिया, दादी वाल वेख के भी हस पिया। कदों तक हसिया भला? जदों तक वो छोटा सी। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते तैसी निभै ओढ़। जदों धरती जो रुख उगदा है, जदों उहदे च वो कोमलता है ना, तुसीं वेखिआ जो धरती जो दरख्त उगदा उस कोमलता कितनी होंदी, हवा वगदी है तो दरख्त झुक जाता। पौधे आपां वेखे छोटे छोटे पौधे हवा दे अगे लम्मे पै जाते हैं, लचक उन्हां च। हवा घटदी है फिर अपनी जगह पर आ जाते, लचक फ्लैक्सीबल। पर ज्यों ज्यों रुख वड्डा होंदा जांदा उहदी लचक मुकदी जाती, कठोरता आउंदी जाती है। फिर एक दिन हवा वगदी है तेज, लक चों दरख्त टुट जाता, मूछे वड्ड हो जाता। ये गल दरख्त की नहीं है, गल बंदे दी है। साडे च फ्लैक्सीबल ही नहीं है, असी लचक नहीं है साडे च। असी इदां ज्यों ज्यों छोटा बच्चा वो हस पैंदा, लचक है। ज्यों तो वड्डे होना उन्हें फिर ताए ने इदां वेखना उहदे अल, ते ओह बच्चा ताए वाल होना, उच्ची बोलो, वेंदा भी नहीं। चाचे वाल घरों कई लिया के वड़ दांगे तैनूं, वो भुल ही गया भी तेनों तो मैं मोढे चुक के स्कूले खड़दा रहा। वो बोलो प्यारिओ, तेन तो मैं स्कूले मोढे चुक के खड़दा रहा, मैनू भरा जो मर्जी कहंदा, पर तेरे तो मैनू उम्मीद नहीं सी। तेनों तो दुध भी मेरी घर वाली नहीं पियाया। कई बार ताया गुस्से च कह दिंदा, तेनों तो पालिया ही इन्हें है, पर उदों लचक सी ना।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਖੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਜੋਸ਼ੀ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਲਚਕ ਦਰਖਤ ਛੋਟੇ ਚ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਚਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਬਪੁਰਾ, ਹੀਰਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਰਤਨ ਕਰੋੜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੰਦਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਪਰ ਅੱਜ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਖਤਮ। ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਲੈਕਸੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਲਿਆਕਤ ਹੋਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਫਿਰ ਵਸਾ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਮਗਰ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਚੂੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਘਰ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ। ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਖਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਲੜਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਕੰਗਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨ ਲਾਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੋ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਗਾਇਕ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਹੀਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀਰੋ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਿਲਨ ਨਿਕਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਲਿਆਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਦਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊ। ਸਮਝ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜ ਨਸ ਕੀਤੀ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਦੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਐਂਡ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਵੇਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੀਨਿੰਗ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ, ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹੇ ਕੋਈ ਸੋਈ ਕੌਤਕਹਾਰ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਮਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਮਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ। ਇਹ ਕੌਣ ਰਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਭੈ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ।
हर घट विच राम बोलता है। हुण तूं जिहड़ी गल सतगुरु जी इत्थे कहंदे ने सब सुख दाता राम है, महाराज कोई दूजा है? हुण जे गुरु नौवें पातशाह दे उत्ते आपां नूं विश्वास करना चाहिए, कहंदे दूसर ना है ना कोई, कहंदे दूजा कोई भी है नहीं। तो साडे समाज ने उत्थे बना लिया, कोई कहंदा जी मैनूं उत्थे मत्था टेक के सुख मिलदा, कोई कहंदा जी मैं आह कर्म कांड करा मैनूं सुख मिलदा। हुण इहदा अर्थ उन्होंने अपने सतगुर दे पावन बचनां ते भरोसा नहीं किया। सब सुखदाता राम है दूसर नाहे ना कोई, कहो नानक सुन रे मना ते सिमरत गत होए। जतन बहुत सुख के किए, बड़े जतन किए सुख वास्ते, हर जतन सुख लई कीता, पुत्र की प्राप्ति सुख लई, गड्डी लई सुख लई, घर बनाया सुख लई, दुख लई ते जतन ही कोई नहीं किया। हुण सवाल पैदा हो गया भी दुख आए कित्थों? फिर जे सुख लई सारे जतन किए दुख कित्थों आए? असी बीज लैके आने, जो कणक बीजते हैं ना, यूनीवर्सिटी चों सोधिया होया नवा बीज लैके आने। कई जमीनां 35 किलो बीज, कई 40 पाउणा पैंदा। हुण बीज लिया के पाता, कि नदीन भी लिया के पाया सी बाहरों? जो आप बीज खिला रहे, नदीन किदां दवा दवा उगया, आप स्प्रेयां कीतियां। सानूं ये पता भी जे खाद पाती, पानी देता, स्प्रे ना की, ये नदीन सारा वध फुल जाना है, बीज ने तो बाहरों आना ही नहीं। हुण बाहरों लिया के सिर्फ बीज पाया, नदीन धरती दे विच ही पहलां सी। इदां ही जिहड़ा नदीन है ना, अवगुण, नदीन अवगुण है, ये मनुखी जीवन दे विच पहलां ही बहुत भरे भरे नक्कां नक भरे पए ने। बीज पाउणा पैना है, किहड़ा बीज? अमल कर धरती, बीज शब्दों कर, शब्द का बीज पाउणा पैना। नदीन तो पहले बहुत है। अच्छा हुण पानी की है? मैं पाठ करदा, मैं गुरुद्वारे जाना, मैं कीर्तन करदा, मैं कीर्तन सुनदा, ये पानी देना है। तो जे मैं अवगुण ना पुटे, नदीन ना पुटिया, तो फिर की होना है? फिर फसल नूं, बीज नूं ये सब कुछ लगना ही नहीं, बीज प्रफुल्लित होना ही नहीं। इसे करके पाशा कहते हैं ना कि तीरथ बरत और दान कर। अगे किया गया? मन में धरै कीता ते सारा कुछ चंगा, पर नाल गुमान आ गया, मैं कीता। नानक नेफल जाते ज्यों कंचर इशना। तो साध संगत जिहड़ी गल चल रही सी, हुण किसानी अंदोलन चल रहे, तुहानूं पता है लगातार 26 नवंबर तो लैके 27 नवंबर तक लगातार किदां साडे भरा उत्थे बैठे ने, किदां नैशनल मीडिया ने बदनाम करने की कोशिश की भी ये तो खालिस्तानी बैठे ने जी, ये तो किसान है ही नहीं। उत्थे साडियां भरावां ने ट्रालियां ते लिख लिख के लाता असी किसान हाँ, असी अतवादी नहीं हाँ। राजस्थान के किसान ने आन के कहता, कहता जे ते अपना हक मंगना, खालिस्तान मंगना तो फिर मैं भी खालिस्तानी हाँ। हरियाणा नाल उठ के आ गया, यूपी नाल उठ के आ गई, दूजियां स्टेटां दे नाल लोग उठ के आ गए कि भाई उठो भाई, अगले तो देश वेचण नूं फिरदे ने। किन्ने एयरपोर्ट ने जिहड़े अंदानियां नूं अगलियां ने दे दित्ते अंदर खाते। हुण इहो एयरपोर्ट सरकार को होंदे, उहदा बैनीफिट सरकार नूं हुंदा, उहदी पैसा पब्लिक ते लगदा। हुण ये जदों बरीकी नाल देखोगे, इहो जंग गुरु नानक साहब दे घर दी जंग भी तो इहो ही है। हुण गुरु साहब आपां कहने रब नाल जोड़न वाले, वो कहंदे बाबरा तू जाबर है। आपां कहने गुरु नानक साहब ते परमेश्वर दा नाम जपाउण आया, वो कहंदे राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगाइन बैठे सुते, चाकर नहीं ना पाहन काओ, रात पित कुत्ते हो चट जाओ। वो कहते ने मानस खाने करे नवाज, छुरी वगायन तीन गल ताग, तीन घर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पियावे वही साध, कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करें आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। तो ये तो समझ आती है भी जेड़ी जंग अज है ना, ये जंग गुरु नानक साहब वेले भी इहो सी कि बाबर नूं क्या बाबरा राज इंज नहीं इंज करीदा है। बाबर नूं जाबर क्या, गुरु अंगद साहब महाराज शेरशाह सूरी कोलों जो हमायूं हार खा के आउंदा है, उहदे अगे युरत नाल गल करदे ने। अकबर दा गोविंदवाल साहब आण के मत्था टेकना, प्रभावित होकर आना देश का बादशाह। फिर गुरु 10वें पातशाह पहाड़ी राजियां नाल जंगां की सी, वो चाहुंदे सी जिहड़ी विद्या है 6
कर्म ने, विद्या पढ़नी पढ़ाउणी, दान देना दान लैना, जग करना ते जग कराउणा। विपर बड़ा तेज सी, उन्हें वंड रखी। वो कहना मैं दसांगा जग करना किहने ते कराउणा किहने, विद्या पढ़नी किहने ते पढ़ाउणी किहने, मैं दसांगा। उन्हें इदां रखिया। तो गुरु साहब जी ने कहा नहीं भाई वेखो, इत्थे हर एक नूं जिंदगी जीउण दा अधिकार है, हर एक बंदा जिंदगी जी सकदा है। इहो वजह सी गुरु साहब ने इन्ने विचार सोहणे दिते, हर बंदा बाणी पढ़ सकता है, हर बंदा बाणी गा सकता। इहो ही तो खुल दिल सी कि भाई जीवन सिंह वर्गे महान योधे गुरु नौवें पातशाह दा सीस लैके पंजाब वाल नूं आउंदे ने। क्या गुरु साहब ने तेरा हथ लग गया तो सीस पिटिया गया, तू तो सीस नूं अपवित्र कर रखिया। साडा समाज कित्थे खलोता अज? असीं जातां दे आधार ते गुरुद्वारे बना छड्डे, असीं वंड पा दित्ती। मैनूं खुशी हुई, पता लगा भी इस नगर विच इक्को ही गुरुद्वारा है। तो कितनी वधिया गल है जे साडे पिंडां विच एक गुरुद्वारा होवे, उत्थे सारी संगत आण के जुड़े, असीं गुरु दा उपदेश आण के लईए, साडे मन दी खुराक साडे गुरु कोलों सानूं रोजाना मिले, तो सानूं थां थां ते मत्थे टेकण दी लोड़ पवेगी, थां थां ते सानूं भटकण दी लोड़ पवेगी। तो जिहड़ा ये अज तुसीं उस अंदोलन च वेखो, उत्थे गुरु नानक साहब दी विचारधारा वरत रही है। तुसीं उत्थों गुरु नानक साहब दा फलसफा बाहर कढ दिओ। गुरु नानक साहब फलसफा की है? लंगर वरत रहे ने, दवाई मेडिसन 90% उत्थों की पब्लिक सहूलत लै रही है। असीं तो लगातार उदों दे उत्थे आ। 90% उत्थों दे लोकल बंदे आ, जिहड़े हरियाणे दे लोकल आ, दिल्ली दे लोकल वा, वो कहते सानूं तां इन्हां तंग ही नहीं कीता। ते किड्डी कमाल दी गल है भी जिहड़ा उत्थे लोकल हिंदू पत्रकार है, वो कहंदा इस देश विच सैकड़े अंदोलन होए, बसां फूकीआं गईयां, ट्रेलां नूं अग्गां लगियां, सरकारां दी प्रॉपर्टी, पब्लिक दी प्रॉपर्टी साड़ी गई, पर यह पहला अंदोलन है जिथे किसी का सूई भर भी इन्हां योधियां ने नुकसान, उच्ची बोलो, नहीं किया। इस अंदोलन ते एक हिंदू वीर ने किताब लिख भी दी है, मेरे को पई है, मैं वो किताब पढ़ रहा सी। उन्हें पता किताब समर्पित किहनूं कीती है? वो कहंदा ये किताब उन्हां महान योधियां नूं समर्पित है जिहड़े महान योधे कारपोरेट घराने, अमीर पूंजीपति घराणियां दे विरोध में जिहड़ा पंजाब चों जहाद उठिया है, उन्हां परवानियां, उन्हां सूरजां नूं मेरी किताब समर्पित है। जिहड़ी आवाज़ इन्हां बुलंद कीती है भी हर बंदा रोटी खा सके, हर बंदा जिंदगी जी सके, हर बंदे दी दुकान चले, हर बंदा वाही कर सके, हर बंदा खेतीबाड़ी कर सके, हर बंदा अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पाल सके। तो सानू ये समझना पैना, सानू गुरु पातशाह जी ने यह विचारधारा बख्शिश की है। जिस महान सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का असीं प्रकाश पुरब मना रहे हैं, 400 साला, उन्होंने पावन बचन जिहड़ा आपां हुणे पढ़िया है, कितना प्यारा है भी जतन बहुत सुख के किए, बड़े जतन सुख दे कीते, पर दुख लई ते एक भी नहीं कीता। दुख आए कित्थों? दुख आए साडे गलत कामां विचों। जदों असीं गुरु दा लड़ छड़ दिता, गुरु दा पल्ला छड़ दिता, जदों असीं गुरु दी गोद विचों उठ के परे चले गए, दुख तो इत्थों होने सी। गुरु परमेश्वर किसी नूं दुखी नहीं करता, दुखी साडे कामां, दुख साडे कामां विचों पैदा हुंदे ने। तो सतगुर दी बाणी सानूं समझाउंदी है, जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोए, कहो नानक सुन रे मना हार भावै। हार भावे दा अर्थ की है? ये निजम है, जिद्दां दा कर्म करोगे उहदा रिजल्ट उदां दा ही आउणा है। तुसीं जो वस्तु जिहड़े भांडे जिद्दां दी वस्तु पाओगे उदां दी निकलनी है। थर्मोस च दुध पाया है, चाह नहीं निकलेगी, दुध निकलेगा। तुसीं भड़ोले च, तुसीं ड्रम च कणक पाई है, झोना ते मक्की नहीं निकलेगा। दूर की जाना है, तुसीं धरती है, धरती दे विच बीज के कणक सैकड़े अरदासां कर लो, जे बीजी कणक है निकलेगी कणक। ये निजम है परमेश्वर का। जे बीजी कणक है तो निकलेगी भी कणक ही। इदां पातशाह जी कहते बंदिया, कणक बीजेगा कणक निकलेगी, मक्की बीजेगा मक्की निकलेगी। तो जे मक्की बीजेगा ना, तेनों कहण दी भी लोड़ नहीं पैनी किसी नूं कि इत्थे छल्लियां लगण। तू बस ईमानदारी नाल उहदी देखभाल करी जा, उत्थों अपने आप ही बूटा उगना है, टांडा निकलना है, उन्होंने छल्लियां लगणियां ने, कहण दी भी लोड़ नहीं पैनी। कर्म चंगे कर ला, चंगे कर्म करन वालियां नूं अपने गुरु परमेश्वर नूं कहण दी भी लोड़ नहीं पैंदी। कर्म नेक बनाउण दी लोड़ है सानू। बस आ विचारधारा जिहड़ी सानू गुरु पातशाह जी ने बख्शिश कीती है, काश किते ये विचारधारा साडे नौजवान वीर साडा अपने पल्ले बन लवे। एक चीज़ तो इस अंदोलन ने साफ की है कि जिहड़ी वड्डे पद्धर ते पंजाब नूं
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੰਬੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਭੈਣਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 9 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੋਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਤੜਫ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਆ, ਸੇਮ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਗੀਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਕਸਟਮਰ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕਸਟਮਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਪਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਾਗੀਏ, ਜਦੋਂ ਜਾਗੀਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਭੈਣੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 1 ਅੰਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਲ ਕੇ ਬਾਣੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ YouTube ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਰੈਸਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਉਹ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਪੁੱਤ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਇਹ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਵੇਂਗਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇਂਗਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਾਖੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਾ ਏਕ
हमारा स्वामी जो आ तो सारिਆਂ ਦੇ अंदर बैठा तो मैं अपनी राखी करनी है, तुसी सारिਆਂ ने अपनी राखी करनी है। जे इदां असीं पुत्तां धीआं नूं समझावांगे फिर भावें धी जां पुत्त साडे तो हज़ारां मील दूर जाके भी पढ़े वो डोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि असीं उहनूं सिखा के भेजिया होएगा, पुत्त तेरी राखी मेरे कोल नहीं होनी, पर तैनूं अपनी राखी खुद आप करनी पैनी। इदां समझाओगे बच्चा सोचेगा नहीं मेरे प्यो ने मैनू जिम्मेवारी दे के तोरिया, किहदी? अपने आप की। जिवें एक दरोगा हुंदा ना शहर का थानेदार, उहदी जॉब की हुंदी है भी इस शहर च क्राइम नहीं होण देना मैं अपने हुंदियां। इदां ही भगत कबीर जी कहते ऐ शहर का दरोगा आप बन जा। इत्थे लिखिया सी ना जिहड़ी गल भी संतां मानो दूतां डानो ये कुटवारी मेरी, भी ये मैं शहर का कोतवाल भाई, भी इस शहर च रात नूं मैं जागना दिने भी जागना, भी इस शहर च रात नूं दिने कोई क्राइम ना होवे। किहड़ा क्राइम हुंदा? काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है। आओ गुरु कोलों ये भी जिम्मेवारी लैके सोहना जीवन जीवन का यतन करिए। सारी संगत का प्रबंधक वीरां का तह दिलों धन्नवाद। बड़ी खुशी हुई है तुहाडे नगर च पहली बार इदां समागम ते आउण दा मौका मिले है आप जी ने, क्योंकि आप जी नूं पता है कि लगातार उत्थे काम चल रहा है। सारे पंजाब के हर एक वर्ग ने सहयोग दिता। आप ये नहीं कह सकते भी इस अंदोलन च कोई वर्ग रह गया होगा। बजुर्ग बच्चे मावां भैणां हर एक वर्ग ने अपने मन तो अपने तन तो अपनी रूह तो सहयोग दिता है। तो आओ गुरु अगे अरदास करिए ये अंदोलन सफल होवे, काले बिल रद्द होण ते साडे बजुर्ग बच्चे मावां जित प्राप्त करके आपो अपने घरां नूं वापस आउण। सारिआं दा धन्नवाद। अदो सत्कार नाल फतेह बुलाओ, बड़े प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साथ